Assalamualaikum and a very good morning to all my charming, wonderful and pretty students of class 3rd. Student, today we are going to start our new chapter for class 3rd, subject EVS. And what is the name of our new chapter? Chapter number 9, It's Raining. I request all the students to please take out your textbook. Chapter number 9, It's Raining, and keep one pencil also in your hand. Why? Because this is a very short chapter and only in one explanation video we are going to complete this our chapter. This is a very short story related to elephant and a tree. And in this video only, we are going to write our textual exercise, that is only 4 or 3 questions. Okay, so I request all the students to please take out the chapter number 9. On which page number you are having chapter number 9? We are seeing. Okay, we will see on which page you are having. This is on page number 59. This chapter is on page number 59. So I request all the students to please take out the page number 59 and pencils in your hand. Let's start the lesson. What you see in the first picture? Student, what you see in the first picture with the grey color? Which animal is this? What is the name of this animal? So the name of this animal is E-L-E-P-H-A-N-T, elephant. What is the name of this animal? The name of this animal is elephant. So I hope you must have understand in this chapter we are going to learn about the elephant. Now one more thing I want to ask you. Which is the favorite food of elephant? Elephant को सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है? Elephant love the most banana. Which fruit elephant like to eat the most? Elephant like the banana to eat the most. So this chapter is also related elephant and the banana. So I request all the students to please put up your finger when I am ready. Okay? मैं सभी बच्चों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ जहाँ पर मैं रीड कर रही हूँ आपको वहाँ पर आपकी फिंगर्स रखनी है. सो आपको एट्स बनाना. आपका फर्स्ट पॉइंट पेज नंबर 59 पर सबसे पहले वाला पैराग्राफ. पैरा कौन सा है? आपको ईट बनाना. सो इस एलिफेंट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एलिफेंट? द नेम ऑफ दिस एलिफेंट इज अप्पू. What is the name of this elephant? ये elephant का इस chapter में क्या नाम है? The name of the elephant is Appu. Appu likes banana very much. अप्पू को सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? बनाना. अप्पू को क्या पसंद है? बनाना very much. उसको बहुत ज्यादा पसंद है. किसको? अप्पू. अप्पू कौन है? One elephant, a small baby of elephant. He plucked and ate bananas from the trees every day. अप्पू क्या करता है? वो हर रोज बनाना ट्री के पास जाता है और वहां से प्लक करता है. What do you mean by pluck? यानी वो खींचकर उसको खाता है. आप ये पिक्चर में देख सकते हो. This is a banana tree. ये कौन सा ट्री है? बनाना ट्री है, right? Which tree is this? This is a banana tree. What Appu is doing? Appu इस ट्री के पास जाता है और वहां से with the help of his trunk, आप ये देख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोला जाता है? ट्रंक बोला जाता है. What is the spelling of trunk? T-R-U-N-K, trunk. उसकी ट्रंक की हेल्प से अप्पू बनाना ट्री को प्लक करता है यानी खींचकर निकालता है और फिर उसको वो खाता है. Why? Because अप्पू को बनाना खाना बहुत पसंद है. One day मतलब एक दिन क्या हुआ? See, he saw that the banana tree were dropping. Student, what do you mean by dropping? एक दिन जब अप्पू बनाना ट्री के पास गया बनाना खाने के लिए, उसने क्या देखा वहां? He saw that banana tree is dropping. What do you mean by dropping? Dropping का मतलब आप इस पिक्चर में देख सकते हो गिर जाना. ड्रॉपिंग का मतलब ट्री
सूख गया था। क्या हो गया था? सूख गया था। आपने बहुत सारे पेड़ को आपके घर के आजू बाजू देखा होगा कि अगर उनको पानी नहीं मिलता है तो वो पेड़ क्या हो जाता है, वो ट्री क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो यहाँ ड्रूपिंग का मतलब है वो पेड़ का सूख जाना। अब अप्पू हर रोज जाता था किसके पास? बनाना ट्री के पास। क्या लेने जाता था? बनाना खाने के लिए जाता था। तो एक दिन जब वो बनाना ट्री के पास गया तो अप्पू ने देखा कि वो जो ट्री है वो ड्रॉपिंग हो गया। ड्रॉपिंग मतलब वो सूख गया। क्यों हुआ? व्हाई? इट हैज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब उस साल बहुत लंबे समय तक बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी और उसी के रीजन से वो जो बनाना ट्री थे वो सारे सूख गए थे। अगर बनाना ट्री सूख जाएंगे तो अप्पू कैसे खाएगा, कहाँ जाएगा, राइट? तो उसने क्या सोचा? व्हाट ही हैव थिंक। लेट्स सी द नेक्स्ट। हम नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे कि उसने क्या सोचा। नाउ वी आर हियर। नाउ सी इन द नेक्स्ट पिक्चर। लंबे समय तक बारिश नहीं हुई थी, पेड़ जो था बनाना का वो पूरा ड्राई हो चुका था। किसने देखा? ये अप्पू ने देखा। It must get water in my trunk, said Appu. अप्पू ने क्या बोला कि now I have to go near to the river. मुझे रिवर के पास जाना होगा और अपनी ट्रंक में पानी भर कर लाना होगा। क्यों लाना होगा? He started walking towards the river. Now आप इस पिक्चर में देख सकते हो अप्पू और अप्पू is doing that. अप्पू is inside the river. ये रिवर है और अप्पू कहाँ है? रिवर के अंदर है। क्यों? Why? Because जब वो बनाना खाने के लिए गया he saw that बनाना ट्री जो है वो ड्राई हो चुका था और उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। Why? क्योंकि उस साल बारिश नहीं हुई थी। तो बनाना ट्री को पानी नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं होगा और वो ड्राई होकर मर जाएगा, डेड हो जाएगा। इसलिए अप्पू ने बहुत अच्छा सोचा। क्या सोचा? कि मैं रिवर के पास जाता हूँ और वहां जाकर अपनी ट्रंक के अंदर क्या लेकर आऊंगा? वाटर। किसके लिए? फॉर बनाना ट्री। अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वाज हैप्पी। अप्पू ने पानी पेट भर कर पिया जब तक वो खुश नहीं हो गया कि यस आई एम डन विद वाटर। कभी कभी हम थर्स्टी होते हैं, हमें प्यास लगती है तो हम बहुत सारा पानी एक साथ पी लेते हैं जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होते, ऐसा हमें निकलता नहीं मुंह से, हाँ चलो मैंने पानी पी लिया। तो अप्पू ने भी वैसे ही किया, रिवर के पास गया और जब तक पानी पिया, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो गया, खुश नहीं हो गया, तब तक उसने क्या किया? पानी पिया। कहाँ से? रिवर से। फिर उसने क्या किया? He bathed his body with his trunk. बाथ का मतलब नहाना, बाथ का मतलब नहाना एंड ट्रंक का मतलब उसकी सूंड। ट्रंक का मतलब उसकी सूंड, ये जो होता है ना उसका सूंड, उसको क्या बोला जाता है? ट्रंक। तो वो अपनी ट्रंक की मदद से उसने अपने पूरे बॉडी को बाथ करवाया, यानी वो खुद नहाया। आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का ये ऐसा ऐसा फॉल है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ वाटर। वो क्या है? वाटर। यानी अपनी ट्रंक के अंदर उसने पानी लिया और खुद ही अपने आप पर वो डालने लगा और वो अपने आप को क्या करने लगा? मिलाने लगा, यानी बात करने लगा, राइट? उसके बाद आपने क्या किया? अब हमने दो पैराग्राफ देखा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या हुआ कि अप्पू को बनाना खाना बहुत पसंद था, इसलिए वो हर रोज बनाना ट्री के पास जाता था और वहां से बनाना को तोड़कर वो खाता था। जब वो एक दिन गया उसने क्या देखा कि वहां पर बनाना ट्री था वो सूख गया है। तो उसने क्या सोचा? व्हाट ही थॉट कि अगर ये सूख जाएगा तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? सो ही थॉट, उसने क्या सोचा कि मैं रिवर के पास जाता हूँ, अपनी ट्रंक के अंदर पानी भर के लाता हूँ और बनाना ट्री को मैं दूंगा। तो बनाना ट्री क्या होगा? धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट होगा। जैसे ही अप्पू रिवर के पास पहुंचा तो सबसे पहली चीज उसने क्या की? He drank the water until he was happy. उसने इतना पानी पिया जब तक वो खुश नहीं हो गया, तब तक उसने क्या किया? पानी पीता रहा। After that what he have done? He have bathed himself. अपनी ट्रंक की मदद से उसने क्या किया? अपने आप को बाथ किया, यानी मिलाया। After that what he have done? See, उसके बाद what Appu have done?
हम देखेंगे। उसके बाद आपने क्या किया इन द थर्ड पैराग्राफ में देखो, आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट टू प्लीज पुट द फिंगर वेयर आई एम रीडिंग फॉर यू। देन ही कैरीड वाटर इन हिज ट्रंक एंड poured इट ऑन द बनाना ट्री। उसके बाद अप्पू ने वाटर को कैरी किया, किसमें कैरी किया, उसके ट्रंक के अंदर पोर किया, यानी वहां जाकर उसने डाला। पोर करना यानी डालना। कहाँ डाला, किस पर डाला, बनाना ट्री पर। आप यहाँ देख सकते हो अप्पू रिवर में से पानी लेकर आया। किसमें पानी लेकर आया, उसकी ट्रंक के अंदर पानी लेकर आया। पानी लेकर आकर वो कहाँ आया, बनाना ट्री के पास आया। आप एक और पिक्चर के पैराग्राफ की बाजू में देख सकते हो। अप्पू कहाँ आया, वेयर ही केम नियर द बनाना ट्री। अपने ट्रंक के अंदर वो क्या लेकर आया, he brought a water in his trunk। Now you can see here, आप देख सकते हो यहाँ पर कि अपनी ट्रंक के हेल्प से आपके जो ब्लू कलर्स का ये जो दिख रहा है, what is this all? This all is a water। अपनी ट्रंक के हेल्प से आपको वाटर डाल रहा है। किसको डाल रहा है, बनाना ट्रीज को। कैन यू सी इट क्लियरली इन दिस पिक्चर? स्टूडेंट आई रिक्वेस्ट आप अपनी टेक्स्ट बुक को भी ओपन करें। टेक्स्ट बुक के साथ साथ आप मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो टेक्स्ट बुक में भी लाइव देखें। आप जितना लाइव देखोगे आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा। ओके, आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर, राइट। आपको क्या कर रहा है, ट्रंक के अंदर पानी लेकर आ रहा है और वो पानी उसने कहाँ दिया, किसको दिया, बनाना ट्री को। आफ्टर गिविंग द वाटर टू द बनाना ट्री, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, सी as soon as the banana tree got water they came alive। जैसे ही बनाना के ट्री को वाटर मिला वो क्या हो गया, वापस से खिल उठा, वापस से जिंदा हो गया। जो सूख गया था, जो ड्राई हो गया था, पानी मिलते ही वो क्या हो गया, एकदम अलाइव हो गया, वापस से जिंदा हो गया। कभी कभी धूप की वजह से आप कभी कभी बहुत ज्यादा पानी की आपको तलब लगती है और पानी नहीं मिलता है तो आप कैसे हो जाते हो, एकदम वीक हो जाते हो, ढीले हो जाते हो और बैठ जाते हो। पर जैसे ही कोई आपको पानी देता है, आप उस पानी को पीकर कैसा फील करते हो, एकदम फ्रेश फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो। वैसे ही सेम जब अप्पू ने बनाना ट्री को, ड्राई वाले ट्री को जैसे ही उसने पानी दिया, वो ट्री क्या हो गया, एकदम हैप्पी हो गया और अलाइव हो गया, यानी वापस जिंदा हो गया। अप्पू सेड, फिर अप्पू ने वहां कुछ बोला, क्या बोला, व्हाट ही डन, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे। यानी अप्पू ने बनाना ट्री को प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया, कि आज से मैं हर रोज तुम्हारे लिए रिवर से अपनी ट्रंक के अंदर पानी लेकर आऊंगा और मैं आकर आपको हर रोज पानी पिलाऊंगा, जिससे आप बड़े होंगे और आप जितने बड़े होंगे आपके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स बनाना लगेंगे और फिर मैं वो सारे बनाना रोज खाऊंगा। पर अप्पू ने क्या प्रॉमिस किया बनाना ट्री को, कि मैं हर रोज आकर आपको क्या दूंगा, पानी दूंगा। आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी अ रैप एंड अ टेस्टी बनाना। अप्पू क्या बोल रहे हैं, मैं क्यों आपको पानी दूंगा, बिकॉज तुम मुझे हर रोज रैप यानी पके हुए और एकदम टेस्टी बनाना खाने के लिए देते हो, इसलिए मेरा भी ड्यूटी क्या है कि मैं तुमको हर रोज पानी डालूं। स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके घर के आजू बाजू कोई प्लांट्स है, ट्रीज है, छोटे छोटे प्लांट्स है, आपको हर रोज उसको वाटरिंग देना है, आपको हर रोज उसको पानी देना है। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि अगर वो पेड़ है, ट्री है, बड़ा सा ट्री है अगर आपके घर के पास, वो आपको क्या देता है, फ्रेश एयर देता है, फ्रेश ऑक्सीजन देता है और आपको शेडो भी देता है, छांव देता है, धूप से बचाता है आपको। इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके आजू बाजू, घर के आजू बाजू जितने भी प्लांट्स हैं, आपको उनको हर रोज सुबह शाम पानी देना जरूरी है। आपकी मम्मी शायद गार्डन, किचन गार्डन भी करती होगी, आपकी मम्मी घर पर कुछ चीजों को ग्रो करती होगी, राइट। जैसे नींबू का पेड़ होता है, कड़ी लीव्स का पेड़ होता है, राइट। तो ऐसे पेड़ों को आपको हर रोज पानी देना चाहिए। वाई, क्यों देना चाहिए स्टूडेंट, बिकॉज वो प्लांट आपको फ्रूट्स
फ्रूट्स देता है, वो प्लांट्स आपको खाने की चीज देता है, अगर वो आपका इतना ध्यान रखता है तो हमारा क्या फर्ज होता है कि हम भी उनका ख्याल रखें। और हम उनका ख्याल कैसे रख सकते हैं? बाय डूइंग ओनली वन थिंग, एंड दैट इज अ वेरी स्मॉल थिंग, गिविंग अ वाटर ऑन अ रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम। आपको उनको हर रोज सुबह शाम जाकर पानी देना जरूरी है। अगर आप उनको पानी दोगे तो वो अच्छे से ग्रो होंगे, अच्छे से बड़े होंगे और आपको बहुत सारे टेस्टी फ्रूट्स देंगे। राइट स्टूडेंट्स, डू नॉट फॉरगेट, आज से प्रॉमिस करो आपको ट्री ज़्यादा ग्रो करने हैं। और अगर आपके घर के आजू बाजू ट्रीज है, सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर ड्यूटी टू गिव द वाटर टू दैट प्लांट्स, जैसे अप्पू ने किया। तो अप्पू ने काम बहुत अच्छा किया, राइट? क्यों? क्योंकि बनाना ट्री हर रोज उसको खाना देता था और अप्पू ने फिर उसको क्या किया? पानी दिया, जिससे वो बनाना ट्री और ज़्यादा ग्रो होंगे और अच्छे से फ्रूट्स अप्पू को हर रोज खाने को मिलेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू मूव द नेक्स्ट। हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नाउ दिस इज एन टेक्सचुअल एक्सरसाइज। आपका ये जो है वो एक टेक्सचुअल एक्सरसाइज है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी दिस इज योर टेक्सचुअल एक्सरसाइज। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज टेक आउट द पेंसिल। मैं सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पेंसिल निकालें, बिकॉज हम ये आंसर्स आपकी टेक्स्ट बुक में लिखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू राइट दिस आंसर्स इन योर टेक्स्ट बुक और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी और मैं आपको क्या करूंगी? एक्सप्लेन भी करूंगी। ओके स्टूडेंट, सो दिस एक्सरसाइज आई थिंक सो इट्स ऑन पेज नंबर 60 पर है। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज टेक योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 60। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्री नीडेड वाटर? सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि अप्पू को कैसे पता चला कि ये ट्री को पानी चाहिए? कोई मुझे बता सकता है? एनीवन कैन गिव मी द आंसर? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट आंसर है? कि वन डे जब अप्पू बनाना ट्री के पास बनाना खाने के लिए गया तो उसने देखा कि जो बनाना ट्री है वो ड्रॉप हो गया था। ड्रॉप मतलब वो सूख गया था। उसको देखकर अप्पू को पता चला कि ये ट्री को तो किसकी जरूरत है? वाटर की जरूरत है। तो हम इसका आंसर लिखें। कैन वी राइट दिस आंसर? सो स्टूडेंट, here are the three questions which you have to write in your textbook with the help of the pencil, not with the pen. सभी स्टूडेंट्स को टेक्सचुअल में सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से लिखना है, पेन से कोई नहीं लिखेगा। ओके, नाउ व्हिच इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्री नीडेड वाटर? अप्पू को कैसे पता चला कि बनाना ट्री को पानी की जरूरत है? जो चलो मैं बोल रही हूँ और आप लिखेंगे। As the banana tree were dropping and once watered, the tree become alive. इसका मतलब क्या है कि बनाना ट्री क्या हो गया था? ड्रॉप, D-R-O-P-N-G, ड्रॉपिंग मतलब वो सूख गया था। वो उसको देखने से अप्पू को पता चला कि इस ट्री को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो की हेल्प से आप टेक्स्ट बुक में नहीं लिख पा रहे हैं, डू नॉट वरी। जब भी मैं इस चैप्टर की PDF आपको ग्रुप में सेंड करूंगी, उसके साथ ये टेक्सचुअल एक्सरसाइज का भी पिक्चर मैं आपको सेंड करूंगी, जिससे आप इजीली आपकी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। ये अभी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। अब जो स्टूडेंट को लिख पा रहे हैं, दे कैन राइट, नॉट टू वरी। द सेकेंड क्वेश्चन, from where do the plant growing around your house get water? आपके घर के आजू बाजू जितने भी प्लांट्स हैं, वो सभी प्लांट्स को पानी कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स को गेट वाटर फ्रॉम द रेन। बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिनको पानी रेन की मदद से मिलता है। जब बारिश होती है तो वो प्लांट्स को बारिश की मदद से बहुत पानी मिलता है।
We also water them. और हम सब में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर रोज हम सुबह शाम उस पेड़ को, उस ट्री को या उस प्लांट को पानी देते हैं। और वैसे देखने जाए तो इट्स आवर ड्यूटी, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लांट्स को पानी देना। बट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, जहाँ पर दूर दूर जगहों पर प्लांट्स है, जहाँ पर कोई घर नहीं है, वो प्लांट्स को कैसे पानी मिलता है? तो विद द हेल्प ऑफ द रेन। Appu drink water from the river till he was happy. Have you seen animal drinking water there? अप्पू ने तो रिवर में जाकर पानी पी लिया, जब तक वो हैप्पी नहीं हुआ उतना उसने पानी पी लिया। या आपको पता है कि कौन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो आपके घर के आजू बाजू पानी पीते हुए आपको नजर आए होंगे? यस स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द सोसाइटी के बाहर हम एक पानी का भरा हुआ टब रखते हैं, या तो हमारे घर के बाहर गेट के बाहर हम एक पॉट सा रखते हैं, या तो एक ओपन सा बकेट रखते हैं जो साइज में थोड़ा बड़ा आता है। क्यों हम रखते हैं? क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी में कोई भी एनिमल ग्रास खाने या ऐसे ही आता है, अगर उसको पानी की तलब रखती है, प्यास लगती है, तो अगर हमने ऐसा जगह पर पानी पीने के लिए रखा है तो मोस्ट ऑफ सारे एनिमल्स उस जगह पर जाते हैं, वहां जाकर वो लोग पानी पी लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के घर के बाहर ऐसे बड़े बड़े टब रखे जाते हैं, या तो सोसाइटी के बाहर, सोसाइटी का जो गेट होता है उसके बाहर हम ऐसे टब रखते हैं। क्यों? एनिमल्स को पानी पीने के लिए। जो एनिमल्स रास्ते में घूमते हैं, ऐसे एनिमल्स को भी प्यास लगती है, तो उनको पानी पिलाने के लिए हम ऐसी जगहों पर पानी का टब रखते हैं। तो यस, आपका आंसर क्या आएगा? यस, आई हैव सीन, हमने बहुत बार देखा है। किस किस एनिमल्स को देखा है? कैट्स, डॉग्स एंड काउ। मोस्टली ये 3 एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारे घर के आजू बाजू हमेशा देखने को मिलते हैं, और ये मोस्ट ऑफ ये 3 एनिमल्स ऐसे जो वहां से पानी पीते हैं। कौन कौन से एनिमल्स? कैट, डॉग्स एंड काउस ड्रिंकिंग वाटर अराउंड माई हाउस। यानी मैंने तो पर्सनली अपने घर के पास हमेशा बिल्लियों को, डॉग्स को और काउस को पानी पीते हुए देखा है, पर्टिकुलर ऐसी जगहों पर। और अगर आप ऐसे पानी भरकर नहीं रखते हो तो आज से आप अपने घर के बड़ों को बोल सकते हो कि पापा कैट्स और डॉग्स के लिए आपको पानी रखना जरूरी है। वो पानी तो किससे मांगेंगे? किससे मांग नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि हमें प्लांट्स को रेगुलरली और एनिमल्स को भी पीने के लिए पानी भरकर एक जगह पर रखना जरूरी है। सो स्टूडेंट, here we have completed our chapter number 9, it's raining। हमने अपना चैप्टर नंबर 9 एक ही वीडियो एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट किया, बिकॉज वो बहुत ही शॉर्ट स्टोरी थी, ओनली 4 पैराग्राफ थी। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट टर्म ऑफ पीरियड, यानी हम नेक्स्ट